Hello and assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to another exciting episode of the Swanky Doctors podcast. This is your host Ali Haider, and today we have a very special guest with us, Dr Maurish Fatima. She's a final year MBBS student from King Edward Medical University. She is an avid researcher as well, with over 20 research publications both in international and national journals. I have invited her to talk about the importance of research in the field of medicine, and as she's among us, so aware of all the pain points that we have, and today she will be guiding us on how to get started with the entire research thing. So, Dr. Marish, thank you so much for joining us today, and it's really an honor to have you on our show. Hello, Ali, and hello, everyone. First of all, thank you so much, Ali, for inviting me today. It's honestly really a huge honor to be here with you guys today and talk about research, something that I actually and really like a lot, and Okay, you are welcome. something that I'm really So, passionate about and all. So, okay. we're going to talk about how research impacts the medical education, or how you can do research while being a medical student, or how you can pursue the research, the importance of research, and all such topics and all such questions that pops up in our mind every now and then, all right. So yes, I will you can proceed start with on. the okay. I will start with the basic question, like how did you get into research, और ये सारी story कैसे आपके पास start हुई? Acha, the thing about research is, like, back when I was a second year medical student, I honestly really hated research. मुझे रिसर्च बहुत बुरी लगती थी, रिसर्च करने वाले भी बहुत बुरे लगते थे, Okay. क्योंकि मुझे चीज़ बहुत ड्राई लगती थी, लाइक Yeah. इसकी कोई सेंस नहीं बनती कि you're always circulating questionnaires and you're like texting people again and again कि भाई fill कर दो प्लीज, क्वेश्चन fill कर दो प्लीज, I need these responses and all. तो ये सारी चीज़ मुझे बहुत ड्राई लगती थी, और जिस तरह मतलब कि हमारे आसपास रिसर्च हो रही होती थी, रिसर्च कल्चर था, जो चीज़ें हमने सुनी हुई थी, ठीक है, कि इस तरह होता है कि यू वर्क ऑन अ रिसर्च एंड देन अ सीनियर सुपरवाइजर कम्स और फिर आपका सारा क्रेडिट ले जाता है, मतलब लाइक देयर वर अ Yeah. लॉट ऑफ रूमर्स अराउंड अस, जिसकी वजह से आई ऑनेस्टली डिडंट लाइक रिसर्च. I started research with a senior back in second year MBBS, or my initial experiences were like pretty bad, to be honest. Okay. और आई थिंक यही वजह है कि दैट पुश्ड मी फर्दर इनटू लर्निंग हाउ रिसर्च एक्चुअली वर्क्स आउट, राइट. Okay. जब मैंने सेकेंड ईयर में रिसर्च स्टार्ट की तो इनिशियली लाइक आई वाज, ठीक है मैं सीख रही हूँ, कुछ ना कुछ पता चल रहा है, पता तो चले कि चीज़ क्या है, ठीक है. और उस वक्त एक बहुत ज़्यादा हाइप बनी थी, बिकॉज उसके बाद आपका कोविड आ गया था एंड स्टेप 2 CS गॉट कैंसल्ड. फिर बहुत ज़्यादा हाइप बन गई Okay. थी कि इफ Okay. यू आर परसिंग USML, इफ यू आर डूइंग दैट, तो भाई आपके पास रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए. एंड Yeah. सिंस आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन परसिंग USML पाथवे, तो आई वाज लाइक यार चलो फिर सीख ही रहता है. Okay. लेकिन वो एक्सपीरियंस इतना बुरा था कि जिन सीनियर के साथ मैंने काम किया, ही मेड मी वर्क, लाइक सारा काम करवाया एंड देन ही जस्ट गोस्टेड मी, ठीक है. कि कोई Okay. रिस्पॉन्ड नहीं करना, एंड आई वाज लाइक अच्छा मुझे बताओ तो सही कि मैंने करना क्या है. Obviously, I Mm-hmm. cannot even blame him क्योंकि he was like a really senior and he was always busy in his projects. तो Mm-hmm. ये भी मेरे लिए बहुत था कि उन्होंने मुझे टॉपिक दिया और सब कुछ दिखाया. Mm-hmm. लेकिन द थिंग वाज कि वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, मतलब कि मेरे Okay. मुझे मुझे एक व्यू पॉइंट आया ना, वो यही आया कि दिस इज हाउ रिसर्चर्स आर, कि दिस इज Okay. हाउ Okay. अनप्रोफेशनल दे आर. That was a pretty bad experience. So, Dr. Marish, can you please tell us about the importance of research in the field of medicine? अच्छा, रिसर्च की इम्पोर्टेंस. सो बेसिकली जो रिसर्च है ना, आई थिंक ये डिपेंड करते हैं कि आपको रिसर्च से क्या चाहिए, ठीक है. सम पीपल आर Mm-hmm. लाइक कि हमने CV बनानी है, सो वी नीड पब्लिकेशंस फॉर दैट. सम पीपल आर लाइक वी Mm-hmm. नीड अ लर्निंग एक्सपीरियंस, और हमने डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करना है, बेसिकली टू रूल आउट के Okay. कौन सी स्पेशलिटी इज द राइट वन फॉर अस. सो बिकॉज वी डू नॉट हैव Mm-hmm. दैट मच एक्सपोजर हेयर, being a medical student, different subspecialties के साथ. So it's a good way to Mm-hmm. to get in connection with the mentors and all, and to get to know कि अच्छा इस field में actually latest evidence क्या है या चल क्या रहा है latest area में, Mm-hmm. ठीक है. And the third thing is Okay. people who actually want to be like going to an academic career, or want to be some like Mm-hmm. scientist and really passionate about what research is, really passionate about discovering, reading, and getting to know into the field of scientific advancements and all. तो ये तीनों कैटेगरीज हैं, Okay. डिपेंड करता है कि आपको उसमें क्या चाहिए. अगर आपको सिर्फ CV के लिए Okay. चाहिए ना, ठीक है, तो उसके लिए जो मेन अप्रोच मेडिकल स्टूडेंट्स यूज करते हैं ना,
वो ये करते हैं, दे गो टुवर्ड्स सिस्टमैटिक रिव्यूज, और उसमें फिर ये होता है कि पीपल कोलैबोरेट अ लॉट एंड अ लॉट, ठीक है। कोलैबोरेशन इज द Yeah. मेन की जो आपको लेके जाती है कि लाइक यू आर एबल टू गेट लाइक अ ह्यूज नंबर ऑफ पब्लिकेशंस इन सच अ शॉर्ट टाइम। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पे आप क्वांटिटी की तरफ जाते हो वहाँ पे आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, राइट। Yeah. लाइक यू हैव अराउंड 10 पेपर्स पब्लिश, ठीक है, लेकिन वो 10 के 10 पेपर्स आर इन लो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स, ठीक है। या फिर Yeah. यू आर पोर्ट्रेइंग योर सीवी टुवर्ड्स कि अच्छा मैंने जाना है स्पेसिफिकली न्यूरोलॉजी में, बट यू हैव पब्लिकेशन इन डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है, जस्ट बिकॉज यू वांटेड Yeah. टू इंक्रीज अ नंबर ऑफ पेपर, ठीक है। तो एक वो Yeah. डिमांड होती है। लेकिन क्योंकि हमारी अपनी फील्ड में भी ऐसे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, सीनियर्स में भी, हु आर मोर इनटू नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक you're doing something absolutely wrong, but it's also not like you're doing something absolutely right, ठीक है। But this is Okay. a reality and this is a fact that exists here. Then there are people who really Okay. prefer quality. फिर जो लोग क्वालिटी को प्रेफर करते हैं, they ultimately get in connection with those people who prefer quality, ठीक है। क्वालिटी Yeah. में मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है यू आर नॉट पब्लिशिंग अ लॉट ऑफ पेपर्स इन अ शॉर्ट टाइम, बट यू आर डेफिनेटली पब्लिशिंग अ फ्यू पेपर्स इन अ गुड इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल। द थर्ड थिंग अबाउट Okay. दोज पीपल जिन्होंने बिल्कुल एक एकेडमिक करियर फोकस करना है, इन लोगों में ये होता है कि दोज पीपल बेसिकली फोकस मोर ऑन लर्निंग द स्किल्स, right skills, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक यू आर इनटू एआई, ठीक है, तो यू विल Yeah. प्रेफर गोइंग टुवर्ड्स टूल्स ऑफ व्हाट हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स, हाउ दिस सॉफ्टवेयर्स लाइक आर एंड पाइथन वर्क्स, एंड यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लर्निंग दी स्किल्स एंड ऑल, ताकि आप जब आगे इन द लॉन्ग रन जाओ, ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली नॉट ओनली सेल दो स्किल्स बट दे कैन हेल्प यू इन सिक्योरिंग अ ग्रांट एंड ऑल, एंड यू कैन एक्चुअली परस्यू एन एकेडमिक करियर। तो डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड क्या Okay. है। सो दिस इज अबाउट के बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आप रिसर्च को कैसे देखना चाहिए, या फिर कैसे लोग Okay. एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में कैसे देते हैं, एक आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में कैसे देखना चाहिए। सो दैट्स इट। Okay, that's great. So, Dr. Marish, I would like to know that what are some of the types of research formats that are available? Like you talked about the systematic reviews, right? Like what are other formats that are available where medical students can jump into? टाइप्स ऑफ रिसर्चेस की बात अगर आप लोग करें ना, फॉर एन एब्सोल्यूट बिगिनर्स आई वुड ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर लेटर टू एडिटर्स, ठीक है, बिकॉज what Okay. you need to work on at that time is to not only to get familiar with the concept of research, but also to know how you can cache the concept and ultimately land into a publication. क्योंकि जब आप beginner level के ऊपर होते हो Okay. ना, what matters you to, जो आपको सबसे ज्यादा मैटर करता है ना, that is ultimately getting published. और अगर आप उस वक्त कोई Okay. एक बहुत ऐसा टॉपिक पकड़ लो ना, जैसे टाइम लगेगा, जैसे अगर कोई ओरिजिनल स्टडी है, either you jump into a cohort or either you jump into a cross section studies, these are the studies that ultimately take a lot of time, तो आप बहुत जल्दी demotivate हो Yeah. जाते हो। So for a beginner level I would always and always suggest get into a letter to editor, क्योंकि आप familiar हो रहे होते हो with databases, familiar हो रहे होते हो with the concept of what a research is Okay. and all. Yes. Dr. Maurish, can you please shed a light on what is letter to editor? Like most of the students won't be aware of this term. Oh, So all right. please shed a light on this. So letter to editor is more like कि इसमें भी ना दो टाइप्स हैं। एक वो है कि कोई भी करंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है, एंड यू जस्ट वांट के ऑडियंस गेट्स familiar with what the topic is. For Yeah. example, like Monkeypox recently आया था. monkeypox and COVID, उनकी आप example ले लीजिए. Like recently, I published a letter to editor, and that was about a covermat in the treatment of monkeypox. That drug was previously used for smallpox, लेकिन recently उसके ऊपर trials चल रहे थे. So what rationale I used was the need of trials for this drug for monkeypox, right? Because it has a lot of similarity with the smallpox and all. तो ये डिपेंड करता है कि एक तो चीज होती है कि ट्रेंडिंग क्या चीज चल रही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेज या फिर वायरल डिजीज जो कि आजकल बहुत ज्यादा ग्लोबली इन हुए हैं। दूसरी चीज ये है कि कोई आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ठीक है, उसके अंदर कोई मेथोडोलॉजी का फ्लॉ है, ठीक है, यू कैन एड्रेस दैट फ्लॉ एंड देन यू कैन राइट अ लेटर टू एडिटर टू दैट पार्टिकुलर जर्नल कि ये आपने आर्टिकल अभी रिसेंटली पब्लिश किया, दिस इज व्हाट द ऑथर्स रॉट, दिस इज वेयर द ऑथर्स लेफ्ट अ लूप होल दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, राइट। Okay. उसमें फिर एक सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन होता है, लाइक यू राइट एंड लेटर टू एडिटर, और फिर जो ऑथर है वो उसके रिस्पॉन्स के अंदर एक कॉरेस्पॉन्डेंस लिखता है। लाइक आई रिसेंटली पब्लिश एन आर्टिकल एंड आई रिसीव अ लेटर टू एडिटर इन दैट आर्टिकल, ठीक है, लेकिन
I don't know why the editor actually processed that letter to editor, since it actually didn't address anything. And then I wrote a correspondence to that letter to editor. कि ये चीजें थी, these are Okay. those that are already present in my publication. So what you can do is like reread my publication. So इस तरह भी Okay. होता है most of the. और एक तीसरी चीज ये होती है कि like you can even appreciate an already published research. ठीक है, लेकिन वो एप्रिशिएशन में ये होगा कि आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दोगे, ठीक है, जिसमें आप एक्चुअली उसकी Okay. ना सिर्फ मेथोडोलॉजी को एड्रेस करोगे बल्कि उसकी रिजल्ट्स की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को एड्रेस करोगे वो. लेकिन लेटर टू एडिटर ना Okay. इस तरह के जो दो हैं, इट डिपेंड्स लॉट ऑन जर्नल. ठीक है, कि जर्नल का एडिटर किस टाइप को एक्सेप्ट करता है, किस टाइप को एक्सेप्ट नहीं करता, क्या चीज़ उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. तो दिस इज अबाउट लेटर टू एडिटर. Okay, that's great. Dr. Maurish, can you please tell us what's the difference between meta-analysis and systematic reviews? What these two things actually are? So systematic review अगर मैं बहुत simplify करूँ ना, तो it's like you are interested in a topic or like you get to know कि ये topic है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा recently studies publish हो रही हैं. For example, there is a particular drug, ठीक है, उसकी efficacy और safety के ऊपर studies publish हो रही हैं. ठीक है, आपको 5 to 6 स्टडीज ऐसी मिल जाती हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत कोहेरेंट हैं, वो एक ही ड्रग को डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर टेस्ट कर रही हैं. आप उन सारी स्टडीज को लेते हो, उनका एक समरी टेबल बना देते हो, ठीक है, और उससे नैरेटिवली रिपोर्ट कर देते हो. दैट्स अ सिस्टमैटिक रिव्यू. उन स्टडीज के सारे रिजल्ट्स को आप कंपाइल कर लो और स्टेटिस्टिकली एक पूल्ड इफेक्ट रिपोर्ट कर दो. ठीक है, दैट्स अ मेटा एनालिसिस. Okay. मेटा एनालिसिस इज बेसिकली एन Okay. एक्सटेंशन टू सिस्टमैटिक रिव्यू. Okay. Can you please tell us how to find the right mentor to get started with the research? मेंटोर की बात अगर करें ना, तो उसमें जो अप्रोचेस हम बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट यूज करते हैं ना, एक तो ये है कि व्हेन यू कम अप विद अ टॉपिक, ठीक है, यू सर्च इधर ऑन रिसर्च गेट या फिर आप जनरली स्पेसिफिकली राइट नाउ जो ट्विटर है वो बहुत एक लाइक इट्स अ रियली यूजफुल प्लेटफॉर्म फॉर सर्चिंग फॉर अ मेंटोर. आपने कोई टॉपिक लाइक डिसाइड कर लिया, यू वांट टू वर्क ऑन दैट टॉपिक एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर कि उस फील्ड के साथ रिलेटेड कोई स्पेशलिस्ट या कोई सीनियर ऑथर अवेलेबल है, समवन पब्लिशिंग अ लॉट इन दैट फील्ड. सर्च करें रिसर्च गेट के ऊपर, सर्च करें ट्विटर के ऊपर, ठीक है. यू कैन ईदर ड्रॉप एन ईमेल और ईदर लाइक ड्रॉप अ मैसेज इन रिसर्च गेट. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आपको टॉपिक सिलेक्शन पे ही अकोमोडेट कर लेते हैं. कई बार ये होता है कि सम पीपल are like reluctant to collaborate with you when you are just at the stage of topic selection, because most of the time the problem with medical students is कि वो लोग ना consistent नहीं रहते. ठीक है, टॉपिक ले लिया तो बहुत उसे लैग कर लिया, बहुत लंबा लटका लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, तो उस वजह से ना फिर मेंटर्स गेट एग्जॉस्टेड. तो उसमें ये होता है कि यू आर डन विद योर मैन्युस्क्रिप्ट, आपकी मैन्युस्क्रिप्ट पूरी कंप्लीट हो गई है एंड यू नीड टू गेट दैट मैन्युस्क्रिप्ट इवैल्यूएटेड बाय अ सीनियर ऑथर. ठीक है, आप 3-4 लोगों को निकालोगे फील्ड से, उन्हें सॉर्ट आउट करोगे, जस्ट ईमेल योर एब्स्ट्रैक्ट टू दोज पीपल. अगर आप 10 लोगों को भी ईमेल कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट देयर वुड बी वन पर्सन रिस्पॉन्डिंग यू बैक either with a yes or no. So it's always like कि आप जो है ना, मतलब it's a chance. ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग जो उस फील्ड के अंदर एक्टिवली पब्लिश कर रहे हैं ना, स्पेसिफिकली ऑन रिसर्च गेट, और आप देखोगे कि उनकी टीम के अंदर अगर मेडिकल स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो दे ऑलवेज एंड ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स. ठीक है, और आप एक दफ़ा कोलैबोरेट करोगे ना, पीपल विल सी कि अच्छा इसके अंदर पोटेंशियल है एंड दे आर लाइक रियली विलिंग टू इन्वेस्ट देयर टाइम इन यू, एंड दैट्स द वे यू फाइंड अ मेंटर. Okay, that's some nice tips. So, Dr. Maurish, can you please tell us like how to find the right topic and what's your approach of finding and selecting the research topics? टॉपिक पहले आपने अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को स्पेसिफाई करना है. इधर यू इंटरेस्टेड इन मेडिसिन, इधर यू इंटरेस्टेड इन सर्जरी. मेडिसिन में बट इनिशियल स्टेजेस पे इनिशियल स्टेजेस पे मेडिकल स्टूडेंट जो है वो बहुत कह लें कि कुछ जनरल सा ही पता होता है मेडिसिन का भी और सर्जरी का भी, एंड ही इज़ नॉट एक्चुअली श्योर कि उसको किस स्पेशलिटी में आगे एक्सेल करना है. आई थिंक फिर आप ना, मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने फील्ड को स्पेसिफाई नहीं ना किया होगा, तो फिर मैं उसको भी आपको छोटा सा हैक बताती हूँ. ठीक है, आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है. आपने सिस्टमैटिक रिव्यू करना है, या आपने ओरिजिनल स्टडी करनी है, या आपने लेटर टू एडिटर लिखना है. ठीक है, ये तीनों चीज़ों में से अगर सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि आपने सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस करना है, अभी आप श्योर नहीं हो कि आपने कौन सी फील्ड डिसाइड करनी है, इट्स ऑल ओके, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस देन. ठीक है, आप पबमेड खोलो, पबमेड के अंदर नीचे आए होते हैं ट्रेंडिंग आर्टिकल्स. ठीक है, ट्रेंडिंग आर्टिकल्स में जो रिसेंटली पब्लिश ट्रायल्स होते हैं ना,
वो अवेलेबल होते हैं, या फिर रिसेंटली पब्लिश जो कोहोर्ट्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। और जो ट्रेंडिंग आर्टिकल्स है ना, दोज आर मोस्ट ऑफ द टाइम दोज आर्टिकल्स जिनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है, राइट? वो ट्रेंडिंग आर्टिकल्स आप निकालो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक नया रिसेंटली पब्लिश ट्रायल मिल गया, नाउ यू गो रिट्रोस्पेक्टिवली, you open PubMed, you apply the filter of meta-analysis, you write the same topic, you find out, acha, this meta-analysis got published in 2020, this is the new trial that got published in 2023 or 2022. So you will just take that trial and update that meta-analysis. Right? For a beginner, this is the best approach. Second thing is, there is a journal, like everyone should know about that journal, that is New England Journal of Medicine. Right? This is the top rated journal in the field of medicine. You go to the website of New England Journal of Medicine and subscribe to their newsletter. They will send you all those recently published trials weekly. Okay, and you get to know कि अच्छा ये वाले topics हैं, ये trend कर रहे हैं. और the good thing about New England Journal of Medicine कि वो आपकी सारी fields को cover कर रहा होता है. It has cancer, it has surgery, it has internal medicine, it has cardio topic. और इसमें जो ट्रायल्स पब्लिश होते हैं ना, दोज आर दोज ट्रायल्स जिनकी बहुत हाई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है, राइट? सो यू ऑलवेज लैंड टू आर रियली गुड टॉपिक. Okay, so let's suppose that if a medical student has selected a particular topic, what are the further steps to continue the study? Is it necessary to get ethical review board's approval? Is it necessary, या फिर he can directly start with the data collection वाला part? अच्छा, अगर आप ओरिजिनल स्टडी कर रहे हो ना, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, या फिर आप कोई कोहोर्ट स्टडी कर रहे हो, तो यू नीड, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू राइट अ सिनॉप्सिस. Synopsis is basically a plan or a layout कि आपने अपनी रिसर्च को करना कैसे है, ठीक है? It includes a brief introduction, it includes details about your methodology कि आपने कहाँ पे रिसर्च करनी है, कैसे रिसर्च करनी है, कितने टाइम पीरियड में करनी है, कौन से आपने स्टेटिस्टिकल एनालिसिस लगाने हैं, कि आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा, आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है? आप कौन सी पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हो, आपकी स्पेसिफिक आउटकम्स क्या हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आपने जो है क्या कहते हैं, जो मेडिकल एथिक्स हैं, उनको आपने कैसे डील किया हुआ है, आपने कॉन्सेंट को कैसे ले रहे हो, मतलब ऑल दोज थिंग्स, जो आपका पूरा प्लान और पूरा लेआउट है ना, वो आपका सिनॉप्सिस में होगा इन द केस ऑफ ओरिजिनल स्टडी. एंड देन यू विल प्रेजेंट दैट सिनॉप्सिस टू द जो आपका रिव्यू बोर्ड है, एथिकल रिव्यू बोर्ड, उसको, एंड देन यू विल गेट एन IRB अप्रूवल, ठीक है? उसके बाद यू कैन स्टार्ट द रिसर्च एंड गो ऑन विद दैट, ठीक है? दिस इज अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट फॉर ओरिजिनल स्टडीज. जहाँ तक सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस की बात आ जाती है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल, लाइक जो उसकी राइट अप्रोच है ना, जो कोक्रेन आपको रिकमेंड करता है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, दैट इज ऑलवेज टू राइट डाउन अ प्लान फर्स्ट, उसके बाद आप रिसर्च को स्टार्ट करो. लेकिन अगर आप 2 दिन मेटा एनालिसिस कर चुके हो ना, तो लाइक यू नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट? सो यू डू नॉट नीड टू राइट डाउन द प्लान. मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप स्क्रीनिंग कर चुके होते हो ना, ठीक है, लाइक यू आर डन विद टॉपिक सिलेक्शन, यू आर डन विद कि आपने अच्छा ये आर्टिकल्स इंक्लूड करने हैं, उसके बाद you write a plan, or you can say write a layout, and then get your review article registered either on the website of clinical trials registry, या फिर जो है ना आप Prospero के ऊपर रजिस्टर करवा लेते हो, या Cochrane के ऊपर भी करवा सकते हो, लेकिन being a medical student Cochrane वाले आप रजिस्टर नहीं करते, so we always use Prospero. उस पर रजिस्टर करवा लेते हो, and then you can go on with your study. For letter to editor you do not require, आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है ethical review board के लिए या फिर Prospero के रजिस्ट्रेशन के लिए and all. Okay, so Dr. Maurish, I have many colleagues who started their research back in first year, and they even did the data collection wala part, but they get stuck at the data analysis. So I would like to know that how can a medical student get over this hurdle, and what's the right approach to learning all the statistical techniques? To be honest, data analysis एक वो part है जिससे हर medical student भागता है, because this was the reason we chose medicine. We didn't go to math, right? और टू बी ऑनेस्ट कि ये आपके साथ ना बहुत बड़ी ज़्यादती है कि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आप अपनी मेडिसिन को भी बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, एंड यू ऑल्सो हैव टू वर्क, उतनी ही आपको एफर्ट लगानी पड़ती है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी, लेकिन दिस हैज़ बिकम अ नेसेसिटी. तो अल्टीमेटली आई वुड रिकमेंड एवरी मेडिकल स्टूडेंट टू लर्न स्टैट्स, ठीक है? आपको सीखनी पड़ेगी. इट्स बिकॉज कि आप हमेशा किसी स्टैटिस्टिशियन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, ना आपके पास इतना टाइम है, ठीक है, ना स्टैटिस्टिशियन इतने जो है ना वो फ्रेंडली होते हैं, और अगर आपको अपनी रिसर्च का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस खुद पता हो ना, यू कैन डिफेंड योर थीसिस, और यू कैन डिफेंड योर रिसर्च, और यू कैन लाइक राइट अ रिसर्च पेपर इन अ मच मोर बेटर वे. आप फंस जाते हो, और आपने इसे सॉल्व कैसे करना है एनालिसिस वाले पार्ट को. फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस सीखो,
ठीक है, there are a number of courses available online और वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, ठीक है, you can always go towards that courses and learn that. अगर those courses do not work for you, then you can always reach out to any senior medical student, ठीक है, who is willing to teach you stats and all, ठीक है. अगर stats नहीं भी सिखाता तो ये है कि like you just go with के खुद ही try करते जाओ, ठीक है. You just learn a software, YouTube से बहुत videos available है, ठीक है. यू नो योर मैथडोलॉजी, ठीक है. यू गो विद कि आप एनालिसिस रन कर दो, देन यू कैन ऑलवेज गेट द रिजल्ट्स ऑफ योर एनालिसिस रिव्यू बाय सेंडिंग इट आउट टू डिफरेंट पीपल आउट देयर, ठीक है. So that's the way that you can only deal with it. But I would always suggest the medical students to learn statistical analysis. That is a huge power and it makes you really, really independent. Yeah. Okay, that's great. So after getting the data analyzed, what are the further steps until the result gets published? आप data analysis कर लेते हो, then the next step is to write down the results. Results लिखने के बाद the next step is to write down the discussion section. Then you will complete your whole manuscript. आपकी ओरिजिनल स्टडी है तो आपके उसके क्या पार्ट्स होते हैं? इंट्रोडक्शन है, मेथडोलॉजी है, रिजल्ट्स हैं, डिस्कशन है, एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्लूजन है. आप हमेशा रिजल्ट्स सबसे पहले लिखते हो, उसके बाद यू विल राइट द मेथडोलॉजी, ठीक है, उसके बाद यू विल राइट द डिस्कशन एंड एट द एंड यू विल राइट द इंट्रोडक्शन. कुछ लोग इंट्रोडक्शन पहले लिख लेते हैं, कुछ लोग बाद में लिख लेते हैं. इट्स ऑल फाइन, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड राइट द इंट्रोडक्शन एट द एंड, क्योंकि उस वक्त तक आपने इतना ज़्यादा लिटरेचर रिव्यू कर लिया होता है कि आप जब इंट्रोडक्शन लिखते हो ना, यू राइट अ रियली कॉम्पैक्ट एंड लाइक अ रियली कॉन्साइज इंट्रोडक्शन, एंड दिस इज व्हाट इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज अबाउट, ठीक है. उसके बाद you can send out your manuscript to senior authors for review and for collaboration. It is always really good to have a senior author in your research paper, ठीक है. उसके बाद then you will go hunting out for journals कि अच्छा मैंने किस journal में publish कराना है. वो भी पहली चीज़ ये. What's the right way and how to find that a particular journal is right for a publication? For a journal आपका topic क्या है? आपका topic psychiatry से related है, surgery से related है, medicine से related है, ठीक है. जो आपके ऑनलाइन पब्लिशर्स हैं ना, वो 3 हैं मेनली, एल्सेवियर, विले और द थर्ड वन इज आई थिंक स्प्रिंगर, ठीक है. उनके जर्नल फाइंडर्स अवेलेबल हैं. वहाँ पे यू विल जस्ट राइट द टाइटल ऑफ योर रिसर्च, वो आपकी रिसर्च से रिलेटेड सारे जर्नल्स निकाल देंगे. जर्नल्स की 3 टाइप होंगी, एक ओपन एक्सेस है, एक हाइब्रिड है और एक क्लोज एक्सेस है. जो ओपन एक्सेस जर्नल्स है ना, वो आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है. सो फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट इट्स अ ह्यूज नो ओपन एक्सेस में नहीं पब्लिश करना until or unless you have a senior author who is willing to cover up for your publication charges, या फिर आपकी रिसर्च में कोई स्पॉन्सर अवेलेबल है. सेकेंड ऑप्शन इज टू गो फॉर क्लोज एक्सेस. क्लोज एक्सेस में आपके आर्टिकल्स फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, लेकिन ये है कि दे डू नॉट चार्ज यू एनीथिंग, ठीक है. द थर्ड इज अ हाइब्रिड जर्नल. हाइब्रिड जर्नल में दोनों ऑप्शन होती हैं. यू कैन ईदर पब्लिश इन ओपन एक्सेस और यू कैन पब्लिश इन अ क्लोज एक्सेस, ठीक है. For open access again you have to pay, for closed access you do not have to pay. जर्नल फाइंड कर लिया, ये चीज डिसाइड कर ली, then you go and submit your article. That's it. Okay, और फिर वहाँ से अगर कोई रिजेक्शन आ जाती है then what? अगर तो आपका आर्टिकल डेस्क रिजेक्ट हुआ है ना, मतलब कि दो पॉइंट्स के ऊपर इवेलुएट होता है. एक होता है कि जो एडिटोरियल बोर्ड है ना, वो खुद इवेलुएट करेगा, उसके बाद वो सेंड कर देगा फॉर पीयर रिव्यू. पीयर रिव्यू में ये होगा कि लाइक दोज आर सम फील्ड स्पेशलिस्ट, ठीक है, बट या तो वो ब्लाइंडेड होगा, उसमें ये होगा कि दे डू नॉट नो कि ये पेपर आपका है, ठीक है, या फिर ये होगा कि दे डू नो कि ये पेपर आपका है बट यू डू नॉट नो कि वो रिव्यूअर्स कौन से हैं. और कुछ जर्नल ऐसा करते हैं कि यू नो कि आपका पेपर किन्होंने रिव्यू किया हुआ है एंड दे नो कि उनके पास किन का पेपर आ रहा है, ठीक है. पहले एडिटोरियल बोर्ड से पास कर गया, उसके बाद पीयर रिव्यू में जाएगा. पीयर रिव्यू हर जर्नल का वेरी करता है, लेकिन इसका जो एवरेज टाइम होता है ना, इट्स ऑलवेज 1.5 मंथ्स या फिर 1 मंथ. कुछ जर्नल बहुत लंबा भी ले लेते हैं, लाइक मेरे एक आर्टिकल का 7 मंथ पे गया था और इट वाज सच अ ह्यूज टॉर्चर टू बी ऑनेस्ट. लेकिन ये है कि उस पीयर रिव्यू के बाद भी वो बताते हैं कि वेदर दे विल एक्सेप्ट द रिसर्च और रिजेक्ट द रिसर्च, ठीक है. लाइक देयर आर 3 पीयर रिव्यूअर्स और 2 पीयर रिव्यूअर्स, ठीक है. अगर तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे देन इट विल अल्टीमेटली गेट पब्लिश्ड, ठीक है. अगर उसमें ये वाला इशू आएगा कि फॉर एग्जांपल 2 पीयर रिव्यूअर्स ने कह दिया कि यस वी हैव एक्सेप्टेड द रिसर्च, थर्ड ने कह दिया कि आई एम गोइंग टू रिजेक्ट द रिसर्च, तो वो फिर एडिटर के ऊपर डिपेंड करता है, वो इवैल्यूएट करेगा, डिसाइड करेगा. और कई बार ये होता है कि जो पीयर रिव्यूअर्स है ना, दे एक्सेप्ट द रिसर्च बट उसमें कहते हैं कि अच्छा ये चेंजेस हैं वो कर लो,
और अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल ओके रिजेक्ट भी हो गया ना, तो आपको अगर पीयर रिव्यू से रिजेक्ट हो गया ना, तो यू ऑलवेज गेट द कमेंट्स कि आपका क्यों आर्टिकल रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद यू कैन मेक दोज ओके चेंजेस, मेक दोज करेक्शन एंड सबमिट इनटू एन अनदर जर्नल। तो आप सबमिट करवाते जाओ जब तक आपका पब्लिश नहीं हो जाता। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। डॉक्टर मारिश, मैं जो आपके पास टॉपिक सिलेक्शन वाला पार्ट है, इस पर थोड़ी सी डिटेल लेना चाहूँगा कि मोस्टली क्या होता है कि वंस यू सिलेक्ट अ टॉपिक, तो उसके रिलेटेड ही बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पब्लिश हुए होते हैं। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता है कि मोस्ट मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई टॉपिक पर्टिकुलरली सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड आफ्टर सिलेक्टिंग द टॉपिक दे गेट टू नो कि अच्छा लास्ट ईयर भी इसी से रिलेटेड डाटा पब्लिश हो चुके हैं ऑलरेडी। तो हाउ टू टैकल विद दिस सिचुएशन? अच्छा, ये आपको सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम फेस करनी पड़ती है ओरिजिनल स्टडीज में, एंड दैट इज व्हाई ओरिजिनल स्टडीज, क्रॉस सेक्शन स्टडीज एंड कोहॉर्ट्स आर रियली डिफिकल्ट टू डू एट द लेवल ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट अनटिल अनलेस यू हैव अ मेंटर फॉर इट। जहाँ तक आप ये कह रहे हो ना कि इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च पब्लिश हो चुकी हुई है, तो आपने देखना है उनके रिजल्ट्स के ऊपर, उनके रिजल्ट्स क्या हैं। अगर तो वो रिसर्च पाकिस्तान की सेटिंग में कभी भी पब्लिश नहीं ना हुई, एंड यू हैव द रिसोर्सेज अवेलेबल कि आप उस रिसर्च को पाकिस्तान की सेटिंग में कर सकते हो, तो देयर इज अ गुड चांस दैट कि वो टॉपिक जो है ना वो पोटेंशियल है। ठीक है, अगर एक टॉपिक बैक इन लाइक अर्ली 2000 में पब्लिश हुआ हुआ है, ठीक है, नो डाउट वो पाकिस्तान में पब्लिश नहीं हुआ हुआ या फिर कहीं और भी दोबारा नहीं हुआ, तो उसका मतलब ये है कि उस टॉपिक के ऊपर जो फैक्ट था ना वो स्टैब्लिश हो चुका हुआ है। ठीक है, एंड देयर इज नो नीड फॉर फर्दर रिसर्च। मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिसेंट पब्लिश टॉपिक्स होते हैं, लाइक दोज टॉपिक्स विद इन द लास्ट 5 years, ठीक है, दोज आर रियली पोटेंशियल। दूसरी चीज ये कि वो पाकिस्तान की सेटिंग में पब्लिश हुए हुए हैं कि नहीं हुए हुए। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कितनी पब्लिश हुई है। अगर तो उस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च पब्लिश हुई हुई है ना, और उन सब के रिजल्ट्स मोर और लेस एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं ना, तो देयर आर लाइक फेयरली गुड चांसेस कि आपका आर्टिकल आप अगर पूरा कर भी लो तो इट विल गेट रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉवेलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इट इज नॉट मेकिंग एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द साइंटिफिक कम्युनिटी एंड ऑल। तो दिस इज द थिंग। तो आपने ये एलिमेंट्स को एड्रेस करना है। अगर ये एलिमेंट्स नहीं है तो देन योर टॉपिक इज रियली पोटेंशियल एंड यू कैन लाइक इजीली लैंड इन अ गुड जर्नल। ओके, ठीक हो गया। एंड रैंकिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो सबसे पहले ऑब्वियसली ओरिजिनल स्टडीज़ का जो वेटेज होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इसके मुताबिक अगर आप रैंक करना चाहें तो उसको कैसे रैंक करेंगी? बाकी मेटा एनालिसिस है, कोहॉर्ट स्टडीज़ और बाकी जितनी भी आपने सिस्टमैटिक रिव्यूज़ का नाम लिया। अच्छा, जो आपकी ओरिजिनल स्टडीज़ है ना, क्रॉस सेक्शन स्टडीज़ और कोहॉर्ट्स, उनकी वैल्यू मेटा एनालिसिस से ज़्यादा नहीं है। जो आपका हायरार्की ऑफ एविडेंस है ना, उसमें टॉप में आपका मेटा एनालिसिस होता है। ठीक है, उसके बाद आपके रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आते हैं, उसके बाद आपकी ओरिजिनल स्टडीज़ आती हैं, उसके बाद आपकी केस रिपोर्ट्स आती हैं, और उसके बाद आपकी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ आती हैं। ठीक है, सो सबसे हाई वेटेज एक मेटा एनालिसिस की है। ठीक है, जो ओरिजिनल स्टडीज है ना उनकी मेटा एनालिसिस के बाद में, अगर आपको मेटा एनालिसिस आता है, ठीक है, और आपका मेटा एनालिसिस एक अच्छे टॉपिक के ऊपर, मतलब कि ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पहले बहुत ज्यादा मेटा एनालिसिस पब्लिश नहीं हुए हुए, या फिर ऐसा टॉपिक है जो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा, मार्केट लाइक जो साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर बहुत, लाइक साइंटिफिक मार्केट ही हो गई, साइंटिफिक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इन है। ठीक है, तो यू आर डूइंग अ रियली गुड रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल आप कोविड के एग्जाम्पल ले लें। कोविड के ऊपर लाइक हर तीसरे दिन या हर वीक एक नया एंटीवायरल ड्रग के ऊपर ट्रायल आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप उसको एड्रेस कर रहे हो, कोविड के ट्रीटमेंट्स को एड्रेस कर रहे हो, ठीक है, रीसेंट ट्रायल्स को आप पूल कर रहे हो, मेटा एनालिसिस पब्लिश कर रहे हो, दैट इज सच अ ह्यूज थिंग, और दैट इज एक मेडिकल स्टूडेंट के लेवल के ऊपर आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन अ मेटा एनालिसिस, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, अगर आपके पास डेटाबेसेस की एक्सेस है, आपके पास एक अच्छा डाटा अवेलेबल है, आपके पास अच्छे सीनियर मेंटर्स अवेलेबल हैं, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू कोहॉर्ट्स, टू राइट डाउन, टू वर्क फॉर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज एंड ऑल, और इससे डाटा भी जनरेट करें। लेकिन मेन हिंड्रेंस बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट जो है ना, वो आपकी रिसोर्सेज हैं और आपकी एक्सेस है। यस, या ओके, दैट्स ग्रेट। सो इसको कंक्लूड करते हैं बस। ओके, सो डॉक्टर मारिश, one last question, that what advice would you like to give to all the medical students who are wanting to pursue research along with studies, and what's the right strategy for it? It gets really hectic to manage research with your studies. एक ना एक चीज़ कभी ना कभी compromise आपको करनी पड़ती है. I think it depends upon what you want from research. ठीक है, you want publication, you want to learn the research, or you want to work on the quality papers. ठीक है, if you want publications, then it is easy to manage because you're collaborating a lot. ठीक है, तो ये होता है कि
एक रिसर्च आप एज अ लीड ऑथर कर रहे हो, ठीक है, एक रिसर्च में आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बाकी लोग आपको बैकअप कर रहे हैं, तो आपका इजीली मैनेज हो जाता है. इफ यू वर्किंग इन क्वालिटी और आप चाह रहे हो कि आप प्रोजेक्ट्स को भी लीड करो, तो इट गेट्स ऑलवेज रियली हेक्टिक. लेकिन है तो ये काफी काम हेक्टिक और हार्ड वर्किंग, बट इट्स मोर रिवॉर्डिंग बिकॉज यू अल्टीमेटली लैंड इन अ गुड जर्नल. ठीक है, लेकिन मैनेज करना इट गेट्स डिफिकल्ट, सो इट डिपेंड्स कि आप कितने पैशनेट हो. ठीक है, जो थर्ड थिंग है ना, लर्निंग अबाउट द स्किल्स. तो इफ यू वांट टू लर्न द स्किल्स, यू वांट टू डू योर लाइक आपने अपनी जो मेडिसिन है उसको भी कंटिन्यू करना है साथ, एंड यू आल्सो वांट टू गेट पब्लिश्ड, इट गेट्स रियली रियली डिफिकल्ट. बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, बट पीपल अल्टीमेटली डू दैट. और जो लोग करते हैं देन दे लाइक ऑलवेज, जब जितना हार्डवर्क करते हो उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलता है. So yeah, okay. And what's the right time for a medical student to get into the research? The like right mostly आपके पास सीनियर्स होते हैं, वो कहते हैं नहीं बेटा अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोई जरूरत ही नहीं है आपको करने की. The right time is first year. फर्स्ट ईयर से आप लोग स्टार्ट हो जाए. फर्स्ट ईयर से आप लेटर टू एडिटर पब्लिश कर रहे हैं, सेकंड ईयर में आप अपने स्किल्स को लर्न कर रहे हैं, आप स्लोली इस प्रोसेस को लेके जा रहे हैं, तो बाय द टाइम आप फाइनल ईयर में जाते हैं यू बिकम सच अ सॉलिड रिसर्चर. लाइक मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया था, बट आई वॉज नॉट एबल टू गेट एनीथिंग पब्लिश बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर, बिकॉज वो सारा टाइम पीरियड मैंने फोकस किया हुआ था अपने स्किल्स को लर्न करने पर. ठीक है, एंड अल्टीमेटली इन फोर्थ ईयर आई वॉज एबल टू गेट लाइक अराउंड 20 आर्टिकल्स पब्लिश. वो सारे आर्टिकल्स वही थे जो मैंने थर्ड ईयर से स्टार्ट किए हुए थे, और ग्रेजुअली काम करते 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 आई वाज एबल टू गेट ऑल दोस पब्लिश इन फोर्थ ईयर. और अब लाइक व्हेन आई एम एंटरिंग इन फाइनल ईयर, आई हैव अराउंड 10 पेपर्स सबमिटेड राइट नाउ. तो आपके आहिस्ते आहिस्ते स्पीड भी बन जाती है, टेम्पो भी बन जाता है, और यू अल्टीमेटली गेट पब्लिश्ड एज वेल. Okay, here I would like to end the discussion. Thank you so much, Dr. Maurish, for sharing your insights with us. It was an amazing session, and hopefully people will get real value out of it. Thank you so much for inviting me. It was an honor to be here. And take care, everyone, and best of luck with your podcast. Thank you so much. Thank you so much to all the viewers who have watched the episode till the very end. Join us next time for more exciting conversations. Until next time, Allah Hafiz.